My dear children, today I shall teach you a new chapter from your honeysuckle book. The name of the story is Taro's Reward. It is a Japanese story of an obedient child. Let us enjoy the story. Please stay with me from beginning to end. There was a young woodcutter named Taro. He lived with his old parents on a lovely hillside. He earned only a small amount of money from his work. This made him sad because he wanted to make life better for his parents. One day it was very cold. Taro's father said, I wish I had a cup of shake. Do you know what is shake? Shake is a warm juice and it is very expensive. Now, next. This made Taro sadder than ever, for the shake was very costly. However, next morning he got up earlier than usual and made for the forest. He kept on chopping the wood for a long time. His mouth was dry and he felt thirsty, but he went to chopping the wood. Suddenly, a sound of water falling somewhere nearly made Taro stop his work. He had never seen or heard of rushing water nearby. He was very thirsty. He ran in the direction of the sound. Taro saw a small but beautiful waterfall. He drank the liquid, but to his surprise it was not waterfall but shake. Taro had a pitcher with him. He filled it with that shake and hurried home. The old man was delighted with the liquid. He took just one shallow means what? Ghoot. This stopped his shivering and he began to dance. This was his way to show his happiness. That day they had a visitor from the village who was offered shake. Taro told her a story of magic waterfall, so the story spread. Other villages come to Taro's house. Spread. Other villagers came to Taro's house, and within half an hour the pitcher was empty. Next morning, much before Taro, all the villagers had reached the magic waterfall. However, they became angry when they tasted the liquid. It was nothing but only cold water. They were very angry and wanted to drown Taro, who they thought had cheated them. Himself in the forest to escape. Taro hid himself in the forest to escape the tree. When they had gone, he tasted the liquid himself. It was same fine shake. It was now clear that the magic waterfall gave shake only to Taro. To all there, it gave only water. Obviously, God was kind to Taro because he was a thoughtful son. This story reads the emperor. Emperor rewarded him with 20 coins of gold and named the most beautiful fountain of the city after Taro. This was to encourage all children to honor and obey their parents. Now I am going to explain this story in Hindi for your better understanding. टैरो नाम का एक युवा लकड़हारा था। वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक पहाड़ी गांव में रहता था। वह लकड़ी काटकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसके पिता को जो है एक शेक पीने की इच्छा हुई, लेकिन वह उनको नहीं दे सकता था क्योंकि शेक बहुत महंगा
था। ये एक जापानी जूस होता है जिसको पीने के बाद गर्मी महसूस होती है। तो सुनिए आगे क्या होता है। तो शायद उसके पिताजी कहते हैं कि अगर एक कप सेक मिल जाता मुझे पीने के लिए तो शायद मुझे ठंडक नहीं लगती। इस टैरो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि सेक बहुत महंगा था। फिर भी अगले दिन वह बहुत सुबह उठता है और जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चल पड़ता है। काफ़ी देर तक लकड़ी काटता रहता है। उसका मुंह बिल्कुल सूख चुका था। उसे काफ़ी प्यास लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह लकड़ी काटे चला जा रहा था। तभी कहीं से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर टैरो उस आवाज़ की तरफ चला जाता है और अपनी प्यास को रोक नहीं पाता है और उसी ओर चल पड़ता है धीरे, जिधर से आवाज़ आ रही थी। जब वह वहाँ पहुँचता है तो एक सुंदर झरने को देखता है। उसे प्यास लगी ही थी। वह पानी को पीता है, परंतु यह क्या, वह पानी नहीं बल्कि उसे सेक लगा। वह हैरान हो जाता है, पुनः उस पानी को पीता है और वह उसको एक मीठा सेक का ही अनुभव कराता है। फिर जानते हो क्या बच्चों, टैरो के पास एक घड़ा था। वह उस घड़े को उस जो है सेक से भर लेता है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ता है। अपने पिता को इस द्रव्य को पीने के लिए देता है। उसे पीते ही उसके पिताजी की ठंडक गायब हो जाती है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है। उस दिन गांव से एक महिला उनके यहाँ मिलने आई थी। उनको भी उस सेक को दिया गया। टैरो ने उस महिला से उस जादुई झरने की सारी कहानी को बता देता है। टैरो की यह कहानी पूरे गांव में, यहाँ तक कि दूसरे गांव में भी फैल जाती है और आधे घंटे में लोग वहाँ उसके घर आते हैं और वो सेक लेके जाते हैं, जिससे उसका घड़ा खाली हो जाता है। अगले दिन सारे गांव वाले टैरो के पहुँचने से पहले ही उस जादुई झरने के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन लोगों को झरने का पानी जो है सेक नहीं बल्कि पानी लगता है, जब उन लोगों ने टेस्ट किया तो उन लोगों को जो है गांव वालों को वो पानी सेक की तरह नहीं लगा, बल्कि जो है वो एक ठंडा पानी केवल लगा। तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और उन लोग जो है यह निर्णय ले लेते हैं कि अब ये जो टैरो है ये हम लोगों को बुद्धू बनाया, मूर्ख बनाया, धोखा दिया है, अतः अब आए तो इसी झरने के पानी में इसको डुबो के मार डालेंगे। यह बात जो है पहाड़ी के पीछे खड़ा होके टैरो सुन रहा था, अतः वह छुप जाता है। जब वो लोग टैरो को खोजते हैं जंगल में और जब नहीं मिलता है तो वो सब एक एक करके गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और उन लोग के जाने के बाद टैरो फिर उस झरने के पास आता है और उस झरने के पानी को पुनः टेस्ट करता है और टेस्ट करने पर उसको वह पानी नहीं बल्कि सेक लगता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस जादुई झरने का पानी सिर्फ टैरो के लिए ही सेक था, क्योंकि वह एक आज्ञाकारी पुत्र था, अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला लड़का था। निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता था। इसलिए भगवान ने टैरो के लिए ही उस जो है झरने के पानी को सेक में बदल दिया था, अर्थात भगवान की उस पर एक असीम कृपा हो गई थी। टैरो की यह कहानी राजा तक पहुंचती है। राजा उसे बुलाता है और 20 सोने के सिक्के इनाम स्वरूप देता है और उस नगर का जो सबसे सुंदर झरना था उसका नाम टैरो रख देता है। जानते हो बच्चों राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा ने उसे इसलिए रिवॉर्डेड किया ताकि उससे इनकरेज होके सारे बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें। आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो दिस स्टोरी। नाउ बाय बाय टिल नेक्स्ट मीटिंग।